ایک خاتون دن دہاڑے سریعام ایک صحافی کو سریعام قتل کر دیتی ہیں. گاڑی مار مار کے رو رہا تھا تو ہمارے لیے تو قیامت تھی، لوگوں کے لیے تو اس کو استعمال کیا گیا ہے. قاتل تو وہ ہے ہی ہے، بہرحال اس کے پیچھے ایک مکمل گینگ ہے. ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں نے خود ہی جا کر اپنے ہاتھوں سے کپڑا ڈالا ان کے اوپر اور خون بہہ گیا تھا. ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں معصوم بچہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاپا کدھر گئے ہیں. یہ آوازیں دینے لگ گیا تھا کہ بھاگ نہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ رہو کہ ادھر آ جائے مار دے. ایسے وہ ایسی ہوئی تھی جیسے ویش شرنا ہوئی تھی نا، ایسی ہوئی تھی وہ. اور سریعام اس کو تڑپا کے مارا گیا. اس کرب کو، اس دکھ کو ہم بیان نہیں کر سکتے جتنا ظلم. مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز صاحب کا یہاں پر لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا؟ اور ان کو دن دہاڑے جو ہے خون میں نہلا کے رکھ دیا. انتہائی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا وہ باپ کہ یا چنیوٹ چھوڑ دو نہیں تو ہم تم سے یہ دنیا چھڑوا دیں گے. پھر وہ پیچھے چلے گئے تو تقریباً 2 منٹ بعد نا پھر 2 فائر کی آواز آئی ہے. تو وہ ایک فائر اس نے اور کیا اوپر سے فائر کر کے پھر وہ خود اندر چلے گئے دکان کے، اسی کی دکان میں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی. ناظرین چنیوٹ میں ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ. سینئر صحافی راجہ نواز ماہی کو سریعام دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین اتنی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا جاتا ہے. لواحقین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فریم میں کہ یہ 3 بچے جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ یتیم ہو چکے ہیں. یہ راجہ نواز کے بچے ہیں. ناظرین دیکھیں کہ اتنا افسوسناک قیامت برپا ہے اس گھر پر کہ یہ بچوں کو جو ہے وہ یتیم کر دیا گیا ہے. چھوٹا سا بچہ، اب اس کے سامنے پاپا نظر نہیں آئے گا تو کیا گزرے گی اس پہ. ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے ان پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کہ اتنا بڑا سانحہ آپ کے ساتھ یہ پیش آیا ہے کہ قیامت برپا ہے، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا؟ جی جب ہمیں کال آئی کہ تمہارا بھائی قتل ہو چکا ہے تو اس وقت ہم گاڑی مار مار کے رو رہے تھے تو ہمارے لیے تو قیامت تھی، لوگوں کے لیے تو قیامت ابھی آنی ہے، بہرحال ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے قیامت آ چکی ہے. ہمیں کال آئی کہ تمہارا بھائی قتل ہو چکا ہے تو اور ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہمارے لیے تو قیامت آ چکی ہے. ہم مر جاتے، وہ زندہ رہتے، وہ ہمارے گاؤں ہمارے شہر کی ایک پہچان تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کیا کر کے رہنا اس دنیا میں. اب یہ دیکھیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے جو یتیم ہو چکے ہیں، دیکھیں کس طرح سے ایک اب کسے وہ اپنا باپ کہیں گے. یہ ایسا وقت آنا تھا. جی یہ جو بچی ساتھ بیٹھی ہے یہ میری بھتیجی ہے، تو یہ تو اپنے پاپا کے سوا سوتی نہیں تھی، اب یہ کیسے سوئے گی. تو یہ دیکھیں جس نے قتل کیا وہ خاتون، وہ پہلے سے مطلب اسے جانتے ہیں؟ نہیں پہلے نہیں جانتے، وہ ہمارے علاقے سے تقریباً 30 کلومیٹر دور رہتی ہے تو اس کو استعمال کیا گیا ہے. قاتل تو وہ ہے ہی ہے، بہرحال اس کے پیچھے ایک مکمل گینگ ہے جنہوں نے قتل کیا ہمارے بھائی کو. اچھا جب آپ موقع پر پہنچے ہیں تب آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی؟ جی میں جب پہنچا ہوں تو ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں نے خود ہی جا کر اپنے ہاتھوں سے کپڑا ڈالا ان کے اوپر اور خون بہہ گیا تھا. موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، مطلب ہاسپٹل لے جانے کی بھی کسی نے نہیں ہاسپٹل لے جانے، کیونکہ انہوں نے 3 فائر مارے ہیں نا، جو آخری فائر اس پہ میرا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے. پہلے 2 پہ اس میں جان تھی، وہ اوپر اس نے اٹھنے کی بھی کوشش کی ہے، بہرحال وہ. اچھا یہ دیکھیں اتنی شاطر وہ خاتون تھی، اتنی وہ اس نے مطلب ہوشیاری دکھائی کہ فائر اس نے مارے ہیں، کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں پیدا ہوا اس میں. وہ عورت جڑی ہے نا ٹرین یافتہ ہے نا، تو اس واسطے کیونکہ عام عورت پسٹل پکڑ نہیں سکتی. جی بالکل. انہیں تو 3 فائر مار کے پھر انہیں اپنی جڑی ٹانگ دی پنڈلی تے فائر مار دیتا ہے. بھی یہ لوگوں لگے بھی یہ جناب میرے بھائی نے انہوں قتل کر کے پھر انہوں کرنے کی کوشش کی ہے، بھلے سارا کچھ جھوٹ ہے. اچھا ان کی نیوز میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہیں کافی دن سے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی تھی. ہاں جی 3-4 ماہ سے پہلے ان کو پرچیاں مل رہی تھی، قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی. تو جب دھمکیاں انہیں مل رہی تھی تب انہیں کوئی مطلب کاروائی نہیں کی؟ ہم نے اپلیکیشن ڈی پی او چنیوٹ کو دی تھی کیونکہ قاتلوں کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا، پھر وہ ان کے خلاف کیسے کاروائی کرتے تھے. اب تو وہ سامنے آئے، اب تو انشاءاللہ کاروائی ہوئے گی. اب خاتون گرفتار ہو چکی ہے تو قانونی کاروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ قانونی کاروائی سے ہم مطمئن ہیں، ایس ایچ او چنیوٹ اور دوسرے ڈی پی او چنیوٹ سے انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بتایا گیا، کس طرح سے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 3 فائر لگے ہیں ہمارے بھائی کو، جو آخری فائر لگا اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی.
तो ऐसा वक्त आएगा कि क़यामत बर्पा है, सोचा था आपने? जी जी नहीं, बहरहाल आज तक हमने नहीं सोचा था। वो हम छोटे छोटे थे न, बहुत हमें अच्छे तरीके से रखा, बहुत खुश अखलाक आदमी थे और हक की आवाज़ थे, गरीबों का साथ देते थे। किसी से भी गांव से आप पूछ सकते हैं। ਅਸੀਂ देखिए कि एक सीनियर सहाफ़ी जो कि हमेशा सच की आवाज़ बुलंद करता रहा, उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी गई। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें मासूम बच्चा, उसे पता ही नहीं है कि मेरे पापा किधर गए हैं। तो देखिए कि ये मासूम बच्ची, बेटा क्या नाम है आपका? दुआ हाँ जी, दुआ दुआ कौन सी क्लास में हो आप? 3 आपके पापा अब नहीं है तो आप पर क्या गुजर रही है? पापा की याद आती है? हाँ जी, देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो क़यामत बर्पा है इस घर पर। उनके कज़न भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि आपके कज़न पर इतना बड़ा ये जो हमला हुआ है और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, हमारे ऊपर तो क़यामत बर्पा हो चुकी है। ये उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से ये इल्तमास करते हैं कि ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये वाक़यात जो होते हैं इनको कंट्रोल किया जाए जी, ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हात जो कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे उस पर? वो बहुत अच्छे थे, हमारे पास जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी, हम छोटे छोटे थे तो हमें बातें सुनाते थे, हम बहुत खुश होते थे। वो लम्हात हम कभी भी नहीं भूल सकते। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि लवाहिकीन पर एक क़यामत बर्पा है। किस तरह से एक सीनियर सहाफ़ी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, किस तरह से इनको बेदर्दी के साथ जो है वो यतीम कर दिया गया है। वो छोटे छोटे बच्चे, दूध पीता बच्चा जिसे जो रोज़ पापा पापा कहता होगा, लेकिन अब वो पापा किससे कहेगा। नाज़रीन, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वो दुकान है जो सहाफ़ी की दुकान थी। यहाँ पर जो है वो खातून खड़े होकर जो है वो फायर करती है। ये मौके की जगह है। यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन थे जो मौके पर देख रहे थे कि किस तरह से उसे जो है वो सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, ये मौके की वो जगह है। यहाँ पर जो लेटे हुए थे और ये वो दुकान है, यहाँ पर खातून खड़ी होकर जो है वो फायर खोलती है। ये तमाम वो मनाजिर लोग देखते हैं यहाँ पर, और लोग जो देखने वाले थे ऐनी शाहिदीन, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या किस वक्त पेश आया और किस तरह से ये वाक़या पेश आया है। जी सर, बताइएगा कि ये कितने बजे का वाक़या था? ये तकरीबन 11:45 तकरीबन 11:15 बजे का वाक़या है। ये किस तरह ये वाक़या पेश आया है? मतलब सर, ये हमारी दुकान है, साथ ही दुकान पे बैठे हुए थे हम अपनी शॉप पर, तो हमने ना 2 फायर की आवाज़ सुनी है। जी जी फिर बाहर को देखा है तो बाहर ना वो जो नवाज था ना, नवाज, वो जिसके वो सामने दुकान बनाई हुई उसने, जी जी वो और एक औरत थी, वो तकरीबन दोनों आपस में ना बाहर निकले हैं। नवाज ने उसे पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल था। वो पिस्टल का रुख भी बिल्कुल हमारी तरफ था। हमने छुड़ाने की जाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत का पिस्टल जो था ना उसके हाथ में, वो हमारी तरफ था। तो हमने दुकान से निकल कर पीछे की तरफ भाग गया। सारा ही ना दुकान में 3 आदमी बैठे हुए थे। फिर वो पीछे चले गए। पीछे गए तो तकरीबन 2 मिनट बाद ना फिर 2 फायर की आवाज़ आई है। दोबारा फिर वापस आए हैं ना, तो देखा है तो वो लेटा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। तो वो एक फायर उसने और किया ऊपर से, फायर करके फिर वो खुद अंदर चले गए दुकान के, उसी की दुकान में जाके उसने खुद अपने आप को फायर मारा, फायर मार के और पिस्टल बाहर फेंक दिया उसकी तरफ। तो बस फिर तकरीबन गेम खत्म हो गई है। नाज़रीन, इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़या के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रशीद साहब, जो कि PFUJ के ज़िला सदर हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि इनके साथ उनका बहुत ही क्लोज रिलेशन था, कि किस तरह के उनके साथ ये इतना बड़ा ये वाक़या पेश आया है। ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई अंतोनाक वाक़या जो चिन्योट की सहाफ़त नहीं, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़त को जिसने हिला कर रख दिया है, कि हमारा एक बहुत प्यारा साथी राजा नवाज़ माई, जो इस वक्त एक निजी चैनल न्यूज़ के साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी काम कर रहे थे, उनका दिन दिहाड़े इंतहाई मसलूमाना कत्ल होता है। और इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ज़्यादा कम है। इंतहाई जुल्म, इंतहाई ज़्यादती हुई है। सरेआम हमारे साथी को गोलियां मार दी गई और सरेआम उसको तड़पा के मारा गया। इस कर्ब को, इस दुख को हम बयान नहीं कर सकते। जितना जुल्म हमारे एक दोस्त के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे जिस्म का एक टुकड़ा था, हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक साथी था, वो अल्लाह माफ़ करे, साफ़ियों के ऊपर,
पाकिस्तान के में जितना सवाल आया, देख लें हालिया वाक़या, देख लें अरशद शरीफ का वाला वाक़या देख लें, सेम वही सिचुएशन, वो पाकिस्तान से बाहर थी, ये पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन रिपीट हुई। और चिन्योट के अंदर दिन दहाड़े 11 साढ़े 11 बजे का वाक़या दिन का था, जब आवाम की एक हर वक्त रश चल रही है, मार्केट चल रही है, वो बाजार चल रहा है, एक औरत बड़ी प्लान तरीके से आती है और उनको फायर करके उनको शहीद कर देती है। और जुल्म की हद देखें कि उस औरत ने आके बाकायदा फायर किए, जब उनको 2 फायर लगे, बिल्कुल सामने निशाना ऐसा चूका, उसका निशाना नहीं चूका, बिल्कुल फायर करके फिर जब वो ज़मीन पे गिरे हैं और उन्होंने थोड़ी हरकत की तो उस जालिम ने उसको आके फिर 2 फायर कर दिए और उनको दिन दहाड़े जो है खून में नहला के रख दिया। इंतहाई छोटे छोटे मासूम बच्चों का वो बाप, इंतहाई मैं कहता हूँ कि चिन्योट की सहाफत को दिलेरी देने वाला वो बंदा था। उसने बताया, इदारों को बताया कि सहाफत क्या होती है, उसने सहाफियों को बताया। हम उसकी तहरीरों को देख के हम देखते थे कि यार इस बंदे ने हमें गाइडलाइन दी है। मैं अरसा 30 साल से सहाफत के साथ वाबस्ता हूँ, वो दोस्त हमारे साथ 8 से 10 साल से वाबस्ता था, लेकिन उसने 8 से 10 सालों में हमें वो कुछ सिखाया कि जो शायद हमें उसने जोड़ के रख देता था वो बंदा। उस बंदे ने कभी उसकी सहाफत, इंतहाई दिलराना सहाफत, जिसको सहाफत कहते थे, उसने वो सहाफत करके दिखाई है। उस बंदे ने कभी किसी मकामी इंतजामिया हो, सियासतदान हो, उस बंदे ने आज तक कभी किसी को बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था, हर बात हकायक लिखने। और उसे हम कहते थे कि यार थोड़ा सा कुछ पॉलिसी अपनी देखो, हालात नहीं है, वो कहता था नहीं, जान है एक दिन चली जानी है, मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। उसकी आप फेसबुक पेजेस देखें, उसकी तहरीरें देखें, उस बंदे ने साफियों को झंझोड़ा है, मुआशरे को नहीं, इदारों को नहीं, उसने साफियों को झंझोड़ा है कि ये तुम पे जिम्मेदारियां हैं, अगर ये साफत करनी है तो ये साफत इस तरह करनी है। हमारे साफियों की देख ले, आए रोज कई शहरों में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन कोई जामिया मनसूबा बंदी नहीं। वो साफियों के प्रोटेक्शन के लिए रोजाना बिलों का नाम सुनते हैं, कभी कोई पॉलिसियां सुनते हैं, कभी सुनते हैं साफियों के लिए ये हो रहा है, कोई अमली तौर पे हमें कुछ नजर नहीं आया। एक साफी, अब वो देखे, उसने आज से 3 माह पहले दरखास्त दी, उसको बाकायदा 3 दफा धमकियां मिल चुकी थी, पिस्टल की गोली रख के, कागज की पर्ची रख के, उसको बाकायदा एक दफा खत्मे नबूवत चौक में उसके मोटरसाइकिल की सीट बेल्ट के अंदर वो पर्ची रखी गई, 7 गोली रखी गई कि या चिन्योट छोड़ दो, नहीं तो हम तुमसे ये दुनिया छुड़वा देंगे। देखिए कि वो नवाज साहब बिलोस जब ये काम कर रहे थे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस था, उन्हें कोई लालच नहीं था इस तरह का। तो देखिए कि किस तरह से मतलब एक सच्ची मतलब वो सहाफत कर रहे थे। हमेशा सहाफ़ी को या कलम, ये जो लिखने वाले होते हैं, इनको क्यों दबा दिया जाता है? लिखने वाले को इसलिए दबाया जाता है ना कि जो लोग, जो ऐसे माफियाज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो माफियाज जन्म ले चुके हैं, उन माफियाज को तकलीफ होती है कि ये बंदा हमारी बातें हाईलाइट कर रहा है। हम जिस तरीके से करप्शन करें, जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत करें, जिस तरीके से भी इस माशरे को लिताड़ते जाएं, इसकी आवाम की जो मर्जी करते जाएं, ये बंदे कौन होते हैं हाईलाइट करने वाले? उनको पता है कि ये तो बेचारे फ्रीलांसर हैं, अगर इनको खत्म कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। जब तक हमारे प्रॉपर कानून वज़ा ना हो, जब तक प्रॉपर तरीके से साफियों को बैकअप ना दिया जाए कि साफी की प्रोटेक्शन के लिए, साफी की जान की हिफाजत के लिए वाज़ेह कानून मौजूद ना होगा, उस वक्त तक ये जुल्म और बर्बरियत होती रहेगी। जी नासिन, तो आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, सहाफ़त को जब वो ख़त्म किया जा रहा है। नासिन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।